So again, I Anjum Bhati Nirban welcomes you to join the class of English literature. So class, today we are going to start our third chapter, which is Black Beauty, written by Anna Sewell. Why Anna Sewell wrote this story? Because she loved to have animals, okay, and she always want to have एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, ओके। तो हॉर्सेस उन्हें बहुत पसंद थे, तो उन्होंने हॉर्स के ऊपर ही लिखी एज द ब्लैक ब्यूटी इज अ हॉर्स नेम, ओके। क्लास, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट दिस स्टोरी इज अबाउट हॉर्सेस, okay? I'm sure you all gonna enjoy this story and will learn a good moral from it. Before starting the chapter, I would like to throw a few questions. First is, do you like animals? Or if you like so, which kind of animals do you like to have? And how you will treat them? You will love them or not? You will care them or not? So all about this kind of situation in this story. And one main thing is there, the story told by Black Beauty means the horse itself. यानी ये स्टोरी कौन बोल रहा है, कौन बता रहा है? ब्लैक ब्यूटी यानी हॉर्स ही बता रहा है. So let's get started. ब्लैक ब्यूटी इज अ स्टोरी स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ. यानी कौन बता रहा है ये हमें? ब्लैक ब्यूटी स्टोरी हॉर्स ही बता रहा है. इट डिस्क्राइब द जर्नी ऑफ हिज केयरफ्री डे एज अ colt. Colt means male horse. On English farm with his mother to his difficult life London. यानी अपनी difficult life से निकलकर वो कैसे बाहर आया उसके बारे में है. Then उसके बाद की जो जर्नी बताई है वो है. It also narrate means explain the tale here, story of his happy retirement in the country. Let us read about one of the incident in his life. Now we'll read about who is his here? Horse. Okay. So without further delay, let's get started the chapter. The longer I lived at Birtwick Hall. यानी मैं कितने समय से कहाँ रह रहा था? Birtwick Hall. The more proud and happy. बहुत ही प्राउड फील करता था, हैप्पी था. I felt at having such a place. मुझे बहुत अच्छा लगता था because I had that kind of such place. कौन सा place? Birtwick Hall. Okay. Our master and mistress were respected and loved by all. Why they were respected by all? Because who knew them, जो भी उन्हें जानता था, they were good and kind to everybody. वो सबके लिए बहुत ही दयालु और अच्छे थे. Not only men or women, but horses and donkeys, dogs and cats, cattle and birds, there was no oppressed or ill-used creature that had not a friend in them. Oppressed here meaning is treated cruelly and unfairly. Means वो किसी के साथ well treat करते थे, सभी के साथ, किसी के साथ cruelty नहीं show करते थे, okay? ill treat नहीं करते थे किसी को. तो उसकी वजह से सारे लोग उन्हें respect करते थे, love करते थे. And their workers took the same tone. और जो उनके घर पर वर्कर्स रहते थे वो भी इसी तरीके से, सेम टोन मीन्स सेम वे, उसी तरीके से हमसे ट्रीट किया करते थे. If any of the village children were known to treat any creature cruelly, यानी उन्हें पता लगता है ऐसा कि किसी ने किसी के साथ ill treat किया है, they soon heard about it from the हॉल. वो इसमें कोई एक्शन ले लेते थे अपने हॉल से. हॉल यहाँ पर क्या है? प्लेस करने में, ओके. तो वहां पर उसमें कोई एक्शन के लिए हमेशा खड़े हो जाते थे. मीन्स हमने क्या समझा? The horse was proud and happy because his master and mistress were good and kind, not only to human but towards animals too. And next is, my master and farmer Gray had worked together. Now here the second character is farmer. मास्टर के साथ कौन रहते थे? फार्मर ग्रे, जिनका नेम क्या था? ग्रे. Had worked together for more than 20 years to get check reins on the cart horse done away with. Means here the meaning of check reins is short reins that prevent a horse from lowering its head. These are big. Now कि आपने देखा होगा हॉर्स हो या फिर कोई भी हो, पहले क्या किया करते थे? काट बनाने के लिए उनके आगे कोई भी लेदर स्ट्रिप बांधकर उनके मुंह से और पीछे काट पर लगा दिया करते थे और उसके ऊपर बैठ के या फिर कुछ भी लोड करके लेकर जाया करते थे, जो कि अभी बैन हो चुकी है, ठीक है? दैट इज चेक रेन. सो वो क्या करते थे? More than 20 years to get check reins on the cart horses done away with, and in our parts you rarely saw them.
कि वो पहले तो किया करते थे, लेकिन हमारे जो यहाँ पे बर्थविक हॉल है उस जगह पर ऐसा आप कभी नहीं देखोगे। हॉर्स या फिर कोई भी एनिमल हो, वो लोग इस तरीके से ट्रीट नहीं करते थे किसी के साथ। एंड सम टाइम इफ मिस्ट्रेस हु इज मिस्ट्रेस या मिस्टर master's wife, okay, if mistress met a heavily laden हॉर्स, लेडन हियर लोडेड, यानी कोई भी हॉर्स पर कोई सामान लोड किया हुआ देख ले, अगर मिस्ट्रेस देख लेती थी, शी वुड स्टॉप द कैरेज एंड गेट आउट, वो अपने कैरेज में को रोक लेती थी और बाहर निकलती थी, एंड टेल द ड्राइवर इन हर स्वीट सीरियस वॉइस, और ड्राइवर को बहुत ही स्वीट वॉइस में कहती थी हाउ फुलिश एंड क्रूअल इट वाज, आप कितने फुलिश हो और आप किस तरीके से ट्रीट कर रहे हो इसके साथ। I wish all ladies were like my mistress, यानी हॉर्स क्या कह रहा है, that I wish all the ladies would like my mistress और master too, और मेरे master की तरह भी हो। Believe in treating animals well, जो कि क्या believe रखते हैं कि animals को हमेशा अच्छे से रखना चाहिए। So the horse again saying that the master and mistress want to make the lives of animals better because they believe in treating them well, and they even did not let the other people treat animal with cruelty, यानी दूसरे लोगों को भी नहीं करने देते थे वो गंदा इल ट्रीट एनिमल्स के साथ। Next is, I remember he was guiding me towards home one morning. Who is here? The master. मुझे याद है, horse is saying that मुझे याद है कि हम एक बार घर के लिए बाहर जा रहे थे, घर की तरफ जा रहे थे, मॉर्निंग का टाइम था, when we saw a powerful man driving in a light pony cart. Pony cart is here. Pony is a horse with small breed. यानी a horse with small breed और उसकी कार्ट बनाई हुई थी, यानी उसको किससे बांधा हुआ था, चेक रेन से बांधा हुआ था, with a beautiful little bay. Bay is here, reddish brown horse with a black tail. Okay. तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा हॉर्स था विद स्लेंडर लेग्स, स्लेंडर या मीनिंग थिन लेग्स एंड सेंसिटिव फेस, और बहुत ही अट्रैक्टिव उसका फेस दिख रहा था, मींस वो हॉर्स बहुत अच्छा दिखाई दे रहा था। सो अब उसके बाद क्या होता है, हमने जाते वक्त हॉर्स इज सेइंग दैट वी सॉ अ पर्सन हु इज राइडिंग ऑन अ पोनी, ओके, पोनी का। Just as he came to the park gates, the little thing turned towards them. कि कोई ऐसी चीज उनके आगे से निकल गई। The man, without word or warning, अब उससे क्या हो गया, जैसे हॉर्स के आगे कोई चीज आई तो हॉर्स क्या हो गया, थोड़ा सा स्टॉप हो गया। Without word, अब जो मैन था उसके ऊपर बैठा था, without word or warning, यानी without giving any word, without saying any word and any warning, turned the pony's head with such a force and sadness that it nearly fell. कि इतनी तेजी से उसका हेड को खींचा, इतने फोर्स से और इतनी बुरी तरीके से कि ऐसा दिखाई दे रहा था कि बस अब तो पोनी गिरने ही वाली है। ओके, रिकवरिंग इटसेल्फ इट वाज गोइंग ऑन। अब क्या हुआ, पोनी ने अपने आप को रिकवर किया, अपने आप को संभाला एंड आगे बढ़ने लगी। When he hit it furiously means in anger manner, बहुत गुस्से में जब उसने उसको हिट किया तब क्या हुई, पोनी थोड़ी आगे बढ़ने लगी। अब आप सोचिए कितना पेन हुआ होगा उसे। The pony plunked here meaning is moved suddenly. The pony plunked forward. आगे धीरे धीरे जल्दी से आगे बढ़ी. But the man's hand held the pony back with force enough to hurt it jaw, while the whip. Here whip is a kind of leather strip. जैसे ही उसने उस whip को खींचा तो उसके jaw में hurt हो गया. Still cut into it. और क्या हो गया, कट लग गया। It was, as you can see in this picture, there is a strip, okay, this is check rein, okay, तो इसको हम कहते हैं चेक रेन। इससे क्या होता है कि हॉर्स को पहले बांधा जाता है और उस पर कार्ट बना करके कोई भी सामान या फिर कोई पर्सन उस पर ट्रेवल करते हैं, लोड को ले जाया जाता है। ओके, पहले ले जाया जाता था, तो ये सब बेन हो गया। इट वाज अ ग्रेटफुल साइट टू मी। ग्रेटफुल साइट मींस एक्सट्रीमली बैड सीन फॉर हिम, फॉर होम, फॉर द हॉर्स ब्लैक ब्यूटी, यानी उसके लिए बहुत ही बुरी चीज थी ये। बट मास्टर आस्क्ड मी टू स्पीड अप, और मेरे मास्टर ने मुझे कहा कि जल्दी स्पीड बढ़ाओ। एंड वी रीच द कार्ट इन अ सेकंड, और हम किसकी तरफ पहुंच गए, उस पोनी की कार्ट की तरफ पहुंच गए। देन so he cried in a stern voice. Who cried? Master. मास्टर ने उस जो मैन था, जो पोनी पर बैठा हुआ था, उसको सीरियस वॉइस में कहा। स्टर्न वॉइस मीन सीरियस वॉइस। इज द पोनी मेड ऑफ फ्लैश एंड ब्लड? Okay, flesh and blood and temper, he said.
उसने गुस्से में और क्या कहा कि इसको टेम्पर भी बहुत आता है, फ्लैश एंड ब्लड से भी बनी, मतलब उसने उल्टा रिप्लाई दिया, इट्स टू फॉन्ड ऑफ इट्स ओन विल, कि उसको उसका नतीजा मिल रहा है, ये इसी से खुश है, ओके, एंड आई डोंट लाइक दैट, और ये जैसा चलती है जैसे करती है वो मुझे नहीं पता। कौन कह रहा है? जो पोनी कार्ट पर बैठा हुआ है, ओके। He was a builder who had often been to our place on business. And do you think, said master sternly. Again master ने कहा, क्या तुम्हें लगता है ऐसा करने से सही होगा? That treatment like this will make it listen to you. जो आप इसके साथ treatment ill treat कर रहे हो, क्या ये इसको सुनेगा? And sorry, it should not have turned towards your place. ये ऐसा नहीं है जैसा तुम चाह रहे हो कि ये मैं जैसा चाहूँ वैसे ही करे. The road was straight on, said the man roughly. अब उसने, जो मैन था पोनी कार्ट पर बैठा था, उसने रूट वे में मास्टर को रिप्लाई दिया that the road was straight on, वहां पर सीधी रोड जा रही है, आप यहाँ से चले जाइए. Then you have often driven the pony up to my place. कि तुम्हें कभी अपनी बोनी को मेरे प्लेस पर लेकर आना चाहिए. किसने कहा? मास्टर ने कहा, said master. It only shows the creature's memory and intelligence. How did it know that you were not going there again? कि यहाँ पे ये समझाया जा रहा है हमें कि इंटेलिजेंस और जो क्रिएचर बीइंग होते हैं, जो भी हॉर्स हो, चाहे कोई भी एनिमल हो, या फिर ह्यूमन बीइंग्स भी क्यों ना हो, तो हमें क्या होना चाहिए? उनसे रिलेटेड हमें क्या करना चाहिए? उनको हमें इल ट्रीट नहीं करना चाहिए, उनके साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए. सो द मास्टर वांटेड टू टेल हिम, ओके, आई मस्ट से मिस्टर सेवियर दैट आई हैव नेवर विटनेस्ड अ मोर ब्रूटल ट्रीटमेंट ऑफ अ लिटिल पोनी. यानी उसने क्या कहा? आई हैव नेवर सीन दिस काइंड ऑफ वायलेंट विद एनी एनिमल और द लिटिल पोनी. मैंने कभी नहीं देखा. विटनेस हियर मीन सीन, कि किसी का विटनेस बनना या सीन होना, ओके, कि मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि इतने क्रूर होना. ब्रूटल मीन्स यहाँ पर क्या है? वायलेंट और क्रूर. सो एंड बाय सच एंगर यू इंजर्ड योर ओन कैरेक्टर. आपको पता है अगर हम किसी को मारेंगे तो सबसे पहले हमारी क्वालिटी शो होगी कि हम कैसे हैं, ओके. सो द मास्टर वांटेड टू से हिम दैट बाय योर एंगर यू आर शोइंग योर ओन कैरेक्टर मोर देन यू एंजॉय योर हॉर्स. और जब जो आपने अपने हॉर्स को जो मारा है, उसमें जो इंजरी हॉर्स की नहीं दिखाई दे रही, वो आपके कैरेक्टर दिखाई दे रहा है कि आप कैसे हो. And remember, याद रखो, we shall all have to be judged according to our work. In the judgmental day, we all have to be ask a question, then how you कि आपने क्या किया ऐसा, तो हर के साथ अच्छा ट्रीट करो, ओके. देन उसने क्या कहा मास्टर ने? वी ऑल हैव टू बी जस्ट अकॉर्डिंग टू आवर वर्क. हम जैसा काम करेंगे हमें उसका जजमेंटल मिल जाएगा. whether they to be whether they be towards man or towards beast. Here beasts mean animals. Whether we will treat the people or the animals. Okay class. So here I am ending the chapter. Tomorrow or maybe the next class we will be reading the further details of this story, okay. Till then learn word meanings. Thank you.